Hello everyone. Today we are going to start with the topic of comparison of DFT and FFT, and post that we are going to start with the topic of DIF FFT, which is the second phase of the fast Fourier transform. Trust me, it's very much interesting, and it is very much easy to perform. Now, first of all, the comparison of DFT and FFT. DFT stands for discrete Fourier transform, and FFT stands for fast Fourier transform. Now, why the name fast Fourier transform? Why the term fast came into picture? Let's see. Now, for direct computation in in DFT, we have, according to the definition of DFT, we had x of k. If we wanted to find out the x of k of a sequence x of n, so the x of k was given by summation छोटू n to capital N minus 1 x of n w k n by capital N, from wherein your value of k varies from 0, 1, 2 up till n minus 1. Now, this equation indicates that we have to take multiplication of x of n and your total factor. Now, then we have to add all the terms. Since the total factor is complex, we need to perform complex multiplication and addition over here. Now, in that case, complex multiplications. Now, as given in the above equation, for one value of k, the multiplication should be performed for all the values of n. Now, or you can say छोटू n. The range of n is from 0 to n minus 1. So for one value of k, n complex multiplications are required. Now, the range of k is also from k equals to 0 to n minus 1. Therefore, the total complex multiplications are nothing but n into n, that is nothing but n square, which is again a big number. For example, if you had 4-point sample, then the number of complex multiplication to be performed was 16. If you had 8-point sample, then the number of complex multiplication alone raises to 64. Again, you have to perform complex additions also. So now, according to the above equation, for each value of k, we need to add the product terms of x of n and wkn by n. For example, let us say that for let us say capital N equals to 4. Therefore, for k equals to 0, x of 0 is equals to some term, that is from छोटू n equals to 0 to 3, x of n w 0 into n by 4, which is equals to summation n equals to 0 to 3 x of n w 0 by 4. Now, therefore, your x of 0, therefore, your x of 0 turns out to be x of 0 into w0 of 4 plus x of 1 w0 of 4 plus x of 2 w0 of 4 plus x of 3 w0 of 4. Now, in this above equation, 4 complex multiplications are required and 3 complex additions are required. Here, we have considered n equals to 4. Thus, for each value of छोटू k or k, capital N times complex multiplications are required and n minus 1 complex additions are required. Now, the total values of k and n, that is nothing but the complex additions, are being given by n into n minus 1, that is nothing but n square minus n. So, example, if you had a input sequel of 4-point sample, then in that case, the complex addition, the type, since you might have written the assignment, you might have come to know that the number of complex addition to be performed was very much large in number. If you had a 4-point sample, then you have to do it 12 times. If you had 8-point sample, then you had to do it 64 minus 8, that is nothing but 56 times. Now, for computational complexity using FFT algorithm, now the same thing you are doing using your FFT diagram. So, when you're performing your FFT, then in that case, your total complex multiplications are reduced to n by 2 log to the base 2 capital N. Here log to the base 2 is important, beta, please do pay attention. Now, ऑल्सो जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन पहले के केस में एन स्क्वायर माइनस एन था, यहाँ पे ये वाला टर्म एन स्क्वायर माइनस 1, वहाँ पर या वहीं आपका जो अगर आप एफ एफ टी यूज़ करते हो, इफ यू आर यूजिंग योर एफ एफ टी, देन द टोटल कॉम्प्लेक्स एडिशन रिड्यूसेस टू एन लॉग टू द बेस 2 एन. नाउ,
This is a quick table for reference that if you have some certain point of samples to be performed, then what happens in direct computation and what happens in your FFT. If you are using say 16 point what do you say 16 is the number of samples at the input, and so if you are performing direct computation or DFT, direct discrete Fourier transform, then the complex multiplications are 256 in number and complex additions are 240 in number, wherein the same thing can be done in FFT using 32 complex multiplication and 64 complex addition, which is much reduced version of what we are looking for direct computation. So yes, FFT, but of course reduces not only your complex multiplication and addition, but it also saves your resources and what do you say time in order to perform complex multiplication and addition. Now let us take an example related to the same, which has been asked many times over here. Now we need to show and compare computational complexity which is reduced if 32 point DFT is computed using radix 2 DIT FFT, decimation in time FFT algorithm. Now 32 point DFT using the direct computation. Now the given number of input points are 32, so the number of complex multiplication will be n square, that is 32 square, that is 1024 in number. Now if you are performing complex what do you say if you are performing number of complex additions, then that rises to n square minus n, that is nothing but 992. If the same thing is done using radix 2 DIT FFT, then the number of complex multiplication drops down to what do you say 80 by the formula n by 2 log 2 to the base n log n to the base 2. So yes, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो प्रीवियस केस में आपका बहुत ज़्यादा था 1024 था, दैट इज़ बिंग नाउ रिड्यूस टू 80, एंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन विच वाज 992 it has now been reduced to 160. So now you can compare both the answers for DFT and FFT, and you can surely say that computational complexity is reduced at 32 point DFT is computed using your radix 2 DIT FFT algorithm. That's all for DIT till now. Now we'll proceed for DFT, DIF FFT. So now yes, something very important that we need to discuss now. There is a sequence over here. First of all, let us see what the question says to us is now the question over here is given as I'll keep it over here. Now the question over here is given as obtain the DFT of a sequence say x of n half 0 0 0 0 using DIF FFT. as we had spoken yesterday, DIT FFT होता यानी डेसिमेशन इन टाइम होता तो हम 1 2 का 4 लेते, पर यहाँ पर DIF FFT है तो हम 4 2 का 1 लेंगे. दैट मीन्स देयर विल बी इनिशियली 4 क्रॉसेस, देन 2 क्रॉसेस एंड देन 1 क्रॉस ओवर हियर. जब हम DIT FFT करते थे तब हमारे पास क्रॉस के पहले ट्विडल फैक्टर था, अब हमारे पास यहाँ पे क्रॉस के बाद ट्विडल फैक्टर होगा. सिंस द नंबर ऑफ सैम्पल इनपुट से सेम 8, तो आपके ट्विडल फैक्टर का वैल्यूज़ भी सेम ही होगा बेटा. I'll just make a what do you say show you over here. Now the values of twiddle factor is what I expect you to remember now. W0 of 8 is given by 1, W1 of it is given as 0.707 minus J 0.707, W2 of it is given as minus J, and W3 of 8 is given as minus 0.70 minus 0.707 minus J 0.707. The diagram is much more similar to your what do you say DIT FFT, बस इतना फ़र्क इतना है कि वहाँ पे 1 2 का 4 होता था, यहाँ पे 4 2 का 1 होगा. एंड इफ़ यू आर हैविंग दिस बुक इन योर हैंड देन यू माइट सी देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर. अभी जहाँ पे मैंने पेन से बनाया बेटा, द फर्स्ट वन गोज टू द थर्ड ब्रांच हुआ है, ये थोड़ा गड़बड़ था बेटा. यहाँ पे ये लोग ने सेकंड और थर्ड ब्रांच को ऑक्यूपाई किया था, जबकि आपको फर्स्ट और थर्ड लेना है. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेज ओवर हियर. हाँ, यहाँ पे इनपुट्स आपके लाइन से आएंगे और आपके आउटपुट स्क्रैम्बल्ड आएंगे. 04261537 के वर्जन में आपको इनपुट जैसे है आपके DIF में वैसा का वैसा ही देना है. आपको यहाँ पे सीक्वेंस चेंज नहीं करना है इनपुट का, यानी यहाँ पे हाफ 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 0 0 0 0 वैसे ही सीक्वेंस आएगा बेटा. नाउ आप यहाँ पे फर्स्ट 4 समिंग पॉइंट्स को छोड़ के आप फर्स्ट वाले ब्रांच को फिफ्थ वाले से ज्वाइन करते हो.
सिमिलरली आप जो सेकंड वाला ब्रांच है आपका x(1) उसे आप 6 से ज्वाइन करते हो, जो थर्ड वाला है उसे आप 7 से ज्वाइन करते हो, एंड जो फोर्थ वाला है उसे आप 8th लाइन के पॉइंट से ज्वाइन करते हो। सिमिलरली ओवर ईयर जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसे आप फर्स्ट से ज्वाइन करते हो, सिक्स्थ वाला है उसे आप सेकंड से ज्वाइन करते हो, सेवन्थ वाला है उसे थर्ड से, एंड एट्थ वाला है उसे फोर्थ से। नाउ इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ओवर ईयर, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो कैन आई से एट दिस पॉइंट आपको दो इनपुट मिलेंगे, एक तो भाई यहाँ पे जो हाफ है वो, और यहाँ पे x(4) दैट इज नथिंग बट 0। सो एट दिस पॉइंट द वैल्यू विल बी हाफ प्लस 0 दैट इज नथिंग बट अगेन हाफ। सिमिलरली ओवर ईयर, सिमिलरली ओवर ईयर, सिमिलरली ओवर ईयर। नाउ यहाँ पे अगर आप आओ ध्यान से, सो द वैल्यू ओवर ईयर विल बी नथिंग बट हाफ माइनस व्हाट यू से 0, सो दैट विल बी व्हाट यू से अगेन हाफ ओनली। एंड यहाँ पे भी जब आप आओगे देन अगेन इट विल बी हाफ माइनस 0, हाफ माइनस 0 एंड हाफ माइनस 0। सो इन शॉर्ट ये जितने भी स्टेज 1 के आउटपुट रहेंगे ना बेटा, वो आपको हाफ ही वैल्यू रहेंगे। बट देन जब आप इसे ये G0 वाले टर्म में लिखोगे तो यहाँ से तो डायरेक्टली जा रहा है आपका G0, बिकॉज जो भी बेस है, बेस के यहाँ पे -1 है और उसके बाद ट्विडल फैक्टर है, मतलब G0, G1, G2 और G3 आपके हाफ ही रहेंगे। बस आपके G4, G5, G6 और G7 जो है बेटा, वो वैल्यूज़ आपके ट्विडल फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आएंगे। दैट मीन्स द वैल्यू दैट यू रिसीव ओवर ईयर, आपको ये वाले पॉइंट पे इफ़ यू आर स्टैंडिंग, तो कहना है से ये वाले पॉइंट पे एक तो ये फैक्टर आ रहा है हाफ का, और ये यहाँ से 0 आ रहा है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ अगर -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बी ओनली रिजल्टिंग इन हाफ इंटू योर ट्विडल फैक्टर। जैसे कि मैंने कहा था W0 ऑफ इट इज़ 1, सो आपका G4 विल बी 1, आपका G4 विल बी हाफ इन नंबर, सॉरी माई बैड। देन यहाँ पे अगेन आपका हाफ इंटू व्हाट इज ए 0.707 माइनस J 0.707। सो कैन आई सिंपली से 0.707 को आप, जैसे कि यहाँ पे था 0.70 व्हाट इज से ये 7 है, तो इसको आप 0.7070 कंसिडर कर लो, और इसको भी आप 0.7070 कंसिडर कर लो। सो कहना है इसे इसका हाफ विल बी नथिंग बट 3535, और इसका भी हाफ हो जाएगा -J 0.3535। दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व इट विदाउट अ कैलसी बेटा। थोड़ा अगर आप अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो आंसर्स आपके सामने ही रहते हैं। सो द वैल्यू ऑफ G5 ओवर ईयर विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ 0.707 माइनस J ऑफ 0.707। सो इट विल बी नथिंग बट सिंपली 0.3535 माइनस J 0.3535। फिर आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट हाफ इंटू माइनस J, तो ये हो गया आपका -0.5J, एंड यहाँ पे आपको जो वैल्यू आता है हाफ इंटू व्हाट यू से -0.707 माइनस J 0.707। तो यहाँ पे आपके जो दोनों 35 वाले वैल्यूज़ आएंगे वो माइनस में आएंगे। सो दिस विल बी क्वाइट सिंपल इन नेचर। आपका जो G0 होगा वो हाफ होगा, ये वो G1 हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा। देन दिस वन G4 विल बी हाफ एंड G5 विल बी 0.3535 माइनस J 0.3535। यहाँ पे आपका वैल्यू होगा -J 0.5, और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा -0.3535 माइनस J 0.3535। नाउ अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप ये वैल्यूज़ को अगेन स्टेज 2 में प्रोसेस कर रहे हो। नाउ फॉर स्टेज 2 प्रोसेसिंग अगेन, जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से, थर्ड को फर्स्ट से, फोर्थ को सेकंड से, ऐसे आप उसे ऐड करोगे। जहाँ पे भी आपके क्रॉस खत्म हो रहे हैं वहाँ पे नीचे -1 आएगा, और यहाँ पे ट्विडल फैक्टर बेस के -1 के बाद आएगा। हमारे DIT में व्हाट यू से क्रॉस के पहले आता था ट्विडल फैक्टर, यहाँ पे क्रॉस होने के बाद ट्विडल फैक्टर आएगा बेटा। सो in that case your what do you say, if you are standing at this point for example, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज ये और ये आ रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू होगा H0 वाला जो वैल्यू है दैट विल बी नथिंग बट सिंपली 1 इन नेचर, बिकॉज यहाँ से 0.5 आ रहा है और यहाँ से 0.5 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो यहाँ पे भी 0.5 और 0.5 आ रहा है, सो दैट विल बी सिंपली 1 इन नेचर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी आपको वैल्यू आएगा उसको आप ट्विडल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन यू विल राइट इट फॉर H2। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको आप W28 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर H3। वैसे आपके भाई आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगे, आप फर्स्ट दो को डायरेक्टली आप ऐसे के ऐसे प्रोसेस के लिए भेज दोगे, पर यहाँ पे जो लास्ट के दो वैल्यूज़ आएंगे आप उन्हें ट्विडल फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन यू विल गेट H6 एंड H7। दिस वर द आउटपुट ऑफ स्टेज 2। देन यू विल बी प्रोसीडिंग फॉर स्टेज 3 ओवर ईयर। स्टेज 3 में क्या होगा बेटा, 4 2 का 1 है, तो भाई आपका सिंपली यहाँ पे एक एक क्रॉस आएगा, हर एक क्रॉस के नीचे एक -1, और हर एक लोअर आउटपुट के बाद एक ट्विडल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा यहाँ पे। सो
यहाँ पे भी -1 टोटल फैक्टर, -1 टोटल फैक्टर, -1 टोटल फैक्टर, और यहाँ पे जो आपको आउटपुट आएगा ना बेटा वो 04261537 के वर्जन में आएगा। ये ऐसे क्यों है, ये आपको मैंने जो कल वीडियो भेजा था बेटा, उसके कमेंट में एक मैंने एक्सप्लेनर वीडियो और एक अटैच किया था, उसमें आपको इसका लॉजिक समझ जाएगा कि भाई क्यों हम इसे रिवर्स में लेते हैं, एंड क्यों वहाँ पे DIT में हमने इनपुट रिवर्स में लिया था और क्यों यहाँ पे आउटपुट रिवर्स में है। सो दैट विल बी वेरी मच सिंपली, दैट इज़ नथिंग बट आपके बिट सिस्टम पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बुक में लिखूँ, इफ वेट आई टेक अ पेज ओवर हियर, जस्ट अ मोमेंट है बेटा। Now it is based on your reversal system, so it is based on your 8421 system. 8 तो कभी यूज़ होता ही नहीं क्योंकि 0 to 7 ही होता है, and 8421. So if you are having 0 over here, इफ़ यू हैविंग ज़ीरो पोजीशन ओवर हियर, तो ज़ीरो के लिए बेटा क्या बनेगा आपका, तीन बॉडी से बिट्स में इट विल बी 000। देन 1 के लिए आपका क्या बनेगा, 001। 2 के लिए 010, व्हाट यू से। देन यहाँ पे आपका सॉरी, हाँ, मैं 8 बिट तक ले लेता हूँ ताकि कैसा, ये 0, फिर ये भी 0, एंड वेट, नहीं सॉरी, ये वाला फ़िलहाल मैं होल्ड पे रखता हूँ। वो एक्सप्लेनर वीडियो में बेटा बराबर से उसने बताया है कि भाई आपको जब उसे आप रिवर्स करते हो तो आई गेस ये ऐसे ही है, देयर इज़ नो चेंज ओवर हियर। ये 4th बिट नहीं आएगा, माय बैड, सॉरी। हाँ, जब आप 3 लिखते हो तो 3 को कैसे लिखोगे, 2 + 1, सो दैट विल बी नथिंग बट 011। देन देयर विल बी 4 5 6 7, सो दीज आर नथिंग बट 4 के लिए आप लिखोगे 100, 5 के लिए लिखोगे 101, देन 6 के लिए लिखोगे 110, एंड देन 7 के लिए लिखोगे 111। सो जब आप इसको रिवर्स करते हो बेटा, DIT में इसको बिट रिवर्सल सिस्टम में इनपुट दिया जाता है, दैट मीन्स ऑल द बिट्स आर बीइंग रिवर्स्ड इन नेचर। तो ज़ीरो ही रहता है, पर जब आप 1001 को रिवर्स करते हो तो इट बिकम्स 100 ओवर हियर। देन यहाँ पे जब आप 010 को रिवर्स करते हो इट स्टिल बिकम 010। जब आप 011 को रिवर्स करते हो इट बिकम्स 110, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ आई एम स्टार्टिंग टू रिवर्स माई बिट्स, तो वैसे वैसे आपके बिट्स रिवर्स होते हैं बेटा। दिस विल बिकम 110, तो दिस विल बिकम 011, वैसे आपका फिर हो जाएगा 111। सो इफ़ यू नाउ राइट द रिस्पेक्टिव नंबर, दिस विल बी 0, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2, दिस विल बी 6, this will be, what do you say, 1, this will be 5, this will be 3, and this will be 7. This is why ये आपके DIT का इनपुट है, DIT FFT का, और यही आपके DIF FFT का आउटपुट भी है बेटा। तो दिस इज़ वाई आपके DIT FFT में इनपुट्स ऐसे स्क्रैम्बल्ड होते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम बिट्स को जो है वो रिवर्सल सिस्टम करके देते हैं, इसलिए। So I guess my DIF FFT is not that difficult. We'll take a couple of more examples to understand so that it becomes easier for you. Now again, आपके पास एक DIF FFT दिया गया है, and you have been told to find out the DFT X of the following sequence using DIF FFT. आपको भाई ऐसे क्वेश्चनर ने सामने से ही बोल दिया है कि भाई you need to use DIF FFT and the things should be done in a orderly way. Now the sequence is 1 2 -1 2 4 2 -1 2. So since they have told us to find out DIF FFT, the sequence will be 4 2 का 1. यहाँ पे आपके इनपुट सीक्वेंस में रहेंगे, आपका आउटपुट रिवर्सल सिस्टम में रहेगा, दैट इज नथिंग बट 0426 1537 में। हाँ, 4 2 का 1 है तो मतलब यहाँ पे आपका जो होगा 4 क्रॉसेस आएंगे, 4 क्रॉसेस के नीचे -1 रहेगा, क्रॉसेस के बाद जो समेशन पॉइंट होगा, समेशन पॉइंट के बाद रिस्पेक्टिव टोटल फैक्टर्स आएंगे, फिर टोटल फैक्टर्स के आउटपुट से यू विल गेट योर फर्स्ट स्टेज ऑफ आउटपुट ओवर हियर, दैट इज नथिंग बट G0 G1 G2 G3। आपको चाहिए तो आप अलग से नीचे या बुक में साइड में आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड कि भाई आप ये डायग्राम के ऊपर ही करो, बिकॉज इट बिकम्स वेरी मच शैबी इन नेचर, बट स्टिल इफ यू हैव अ बिगर पेज यू कैन परफॉर्म ऑल द एडिशन एंड और यू कैन राइट ऑल द आंसर्स ओवर हियर ऑल्सो। देर इज़ नो वे रॉन्ग, ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि आप अलग से नहीं कर सकते, यू कैन परफॉर्म इट ऑन द डायग्राम ऑल्सो। आप यहाँ पे भी सारे वैल्यूज़ लिख के आप डायरेक्टली यहाँ पे भी प्रोसेसिंग कर सकते हो।
बट यहाँ पे करने का रिस्क ये है कि थोड़ा डायग्राम थोड़ा शाबी दिखता है बेटा, एंड इट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ओवर हियर देन योर फाइनल आंसर ऑल्सो गोज रॉन्ग ओवर हियर. सो वंस योर फर्स्ट स्टेज इज कंप्यूटेड यू मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज में अगेन व्हाट डू यू से, दो ब्लॉक्स बनेंगे अलग अलग. यहाँ पे दो क्रॉस रहेंगे, यहाँ पे दो क्रॉस रहेंगे. क्रॉस के बेस में -1 जहाँ जहाँ पे भी -1 है बेटा, उसके बाद उस समेशन पॉइंट के बाद ट्विडल फैक्टर होगा. तो वो ट्विडल फैक्टर के बाद जो पॉइंट जो वैल्यू मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आपका आउटपुट पॉइंट रहेगा. वही सिमिलरली यहाँ पे आपको मिलेगा. तो आपका 4 2 हो गया, अभी आपका 1 बाकी है. तो आपके पास यहाँ पे 4 क्रॉसेज रहेंगे, 4 2 का 1. तो यहाँ पे आप सिंगल सिंगल क्रॉस कर रहे हो, हर एक क्रॉस के नीचे एक एक ट्विडल फैक्टर है. और हर एक के बाद यहाँ पे यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज वंस आपके पास सपोज यहाँ पे आउटपुट आ गया तो यही आपका फाइनल आउटपुट होगा, बिकॉज W0 इज नथिंग बट 1 इन नेचर. सो इन दैट केस आपको यहाँ पे W0 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. द वैल्यू विल बी सिमिलर. जो आपको ये पॉइंट पे वैल्यू मिला है वही आपका x(4) वैल्यू रहेगा. बस आपको आंसर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको x(0), x(1), x(2), x(3) वैसे आंसर लिखना है बेटा, ना कि x(0), x(4), x(2). यहाँ पे आपको आंसर ऐसे फॉर्मेट में मिलता है, पर जब आप स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखते हो बेटा, तब आपको x(0), x(1), x(2), x(3) ऐसे फॉर्मेट में लिखना है. सो दैट बिकम्स सिंपलर फॉर यू. एंड लेट मी सी इफ़ यू कैन टेक वन मोर न्यूमेरिकल सो दैट इट बिकम्स लास्ट एंड नॉट द लीस्ट. आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाए भाई कि क्या है फंडा. ना एक सिंपल सा क्वेश्चन है. आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एंड DIT FFT तो अब मेरे बच्चे एकदम आँख बंद करके कर सकते हैं. आई एम सो प्रिटी श्योर अबाउट इट. नाउ your x of n is given as n+1, wherein your capital N is 8. You need to find your DFT, DFT x of k using DIF FFT. In the exam it will always be mentioned whether you have to use DIF FFT या DIT FFT. अगर DIT दिया है तो मैं वापस दोहराता हूँ, DIT में 1 2 का 4 होता है, DIF में 4 2 का 1 होता है. DIT में आप जब क्रॉस करते हो उसके नीचे -1, पर उसके पहले ही ट्विडल फैक्टर लेते हो इनटू कंसिडरेशन. यहाँ पे आप क्रॉस के बाद ट्विडल फैक्टर लेते हो. DIT FFT में इनपुट्स रिवर्सल बिट में है, यानी 04261537 के स्ट्रिंग के रेंज में रहेगा. और यहाँ पे आपका जो आउटपुट है DIT में वो सीक्वेंस में रहेगा. DIF FFT में आपका इनपुट सीक्वेंस में रहेगा, आपका आउटपुट बिट रिवर्सल ऑर्डर में रहेगा. यानी आपका इनपुट सीक्वेंस में है और आपका आउटपुट 0427 के फॉर्मेट में रहेगा. नाउ सिंस दे हैव टोल्ड अस टू यूज DIF FFT, विल बी यूजिंग 4 2 का 1 सिस्टम. x of n is given as n+1, where your n is capital A. This sequence x of n is obtained by putting n equals to 0 to 7. So the equation becomes 1 2 3 4 5 6 7 8. Quite simple, एकदम मस्का बेटा, मस्का. Now my students might be still aware of the twiddle factor. मैं बोलता हूँ आँख बंद करके अपने पब्लिक को आना चाहिए अभी. It becomes W0 is nothing but 1. W1 is 0.707 minus j 0.707. W2 is minus j, and W3 is given as minus 0.707 minus j 0.707. Again the entire diagram is quite simple in nature. यहाँ पे जो भी डायग्राम है बेटा ये काफ़ी सिंपल है. 4 2 का 1 किया गया है. हर एक क्रॉस के बेस में यू हैव अ -1 ओवर हियर. लेट मी सी वेदर इट इज एडजस्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, हर एक क्रॉस के नीचे एक एक -1 दिया गया है बेटा. क्रॉस के बाद यू हैव अ ट्विडल फैक्टर टू बी व्हाट यू से परफॉर्म. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 4 2, तो यहाँ पे दो क्रॉस किया है. दो क्रॉस, हर एक क्रॉस के नीचे एक -1 है. देन यहाँ पे W0 W2 है. एंड सिमिलरली ओवर हियर यू हैव W0 W2. फिर यहाँ पे आपके पास W0 W0. यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ मिलती है, जैसे कि मैंने कहा था, ये आप डायरेक्टली प्रोसेस के लिए डाल सकते हो, बिकॉज W0 इज़ बाई डिफ़ॉल्ट 1. सो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई डिफरेंटली विद दिस ट्विडल फैक्टर. सो येस, इट इज़ दैट सिंपल ओवर हियर. Let us take another एक छोटू सा example over here. Now I guess my students will be quite familiar now with DIF FFT. So that's all for DIF FFT beta. Please do study well, do watch this video, do message me in case you have any doubt. Once we are done with the last topic called as inverse DFT, I'll be giving you an assignment based on this topic. Trust me, it is very simple and it is very interesting, so you can perform very good on the assignment also. So up till then, please do study and stay safe beta. Thank you.